के बोर्ड एग्जाम है टफ होंगे, अच्छा दैट इज लाइक के सो बट और सेम क्लास 8 से ही प्रिपरेशन शुरू है, बिकॉज आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं और उनका लेवल हाई करने की ट्राई किया जाता है कि बच्चों को वो 10th क्लास में ओवरकम ना हो, बट स्टिल 8 क्लास पढ़ लेते बच्चे 9। Hello everyone, welcome to in my channel. As you know that the name of the channel is Nikita's channel, Study with Nikita. So in this channel today I am telling about, first of all, happy Holi to you all, because yesterday was Holi and today I am making this video. एक्चुअली मेरा वीडियो जो है वो बहुत टाइम से नहीं आ रहा है ड्यू टू सम रीजन, बिकॉज मेरे एग्जाम आफ्टर एग्जाम देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स कम इन माय लाइफ, like actually I just get placed in somewhere, so placements and lot of things come, and my MSc, and there is one internship that is important for my subject, or MSc. This is my last sem, so lot of things is going with us, so I decided from today I just making a video for the particular class 10 student, how can start your preparation for the class 10 student. And I decided one more thing is that I'm making videos for especially for mathematics and science, because students have a lot of confusion how to solve maths. So I just making, and I decided to make a video very easy in form, or a lot of very easy methods how can you solve, and there is a lot of practice test and lot of things is going. So before they start the session of the class 10, so I'm just introduce that lectures for a class 10 student. If you are not class 10 student, I hope your family member, your friend, and someone who gave the 9th class exam, so they are moving towards class 10 exam, class 10th, for starting journey. So I'm just sharing my own journey, how I overcome my stress and my anxiety when I came in a class 10th, and lot of things. So I'm just sharing, and I'm just give a one motivation session for all the students who are coming for the class 10th. So I just thought they are not getting rid for that. They are not having a anxiety and lot of things. They are freely. I just want to share a journey, and I start that particular lecture videos, और मैं अपने sessions भी डालूंगी, और topic wise I decided to make a lot of things for class 10 student in easy and very free of cost, everything in YouTube channel. In my YouTube channel I just uploaded lectures, test, quizzes, and flashcards, a lot of things I just want to try to make for student, and I hope everything will be doing well. So I uploaded regular videos. So before this I'm just start my journey when I'm class 10. So how start preparing and how overcome, because I am also a student that time, so I have a lot of pressure, लॉट ऑफ थिंग्स. और स्टूडेंट के माइंड में एक और चीज होती है कि हमें क्लास 10th में अच्छा मार्क्स स्कोर करने हैं, एंड द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर मैं बताऊं तो दैट इज, एक पेरेंट्स का प्रेशर भी होता है कि आपको 90% लाने हैं, 95 अबव लाने हैं. सो I am requesting to all the parents is that please don't force your kids for 95% and 90% and anything else. And don't compare with other students, because everybody has a capability is different. So let me show you one thing. So let's start with my very prestigious और beginning of the life बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जब तक स्कूल में पढ़ा था, so that time was in a first, second, third, और ये सारी क्लासेस होती थी, इट्स लोकल क्लासेस. एंड एक बहुत बड़ा वो आता है हमारे पास, दैट इज लाइक आपके पास अब आपकी बोर्ड एग्जाम है, एक बोर्ड एग्जाम आता है ना, तो बोर्ड एग्जाम लाइक एक सिनेरियो क्रिएट होता है कि अब हम बड़े हो गए, हम 10th क्लास में आ गए, एंड दिस इज अ बोर्ड एग्जाम. फिर उसके साथ साथ एक अडल्टनेस आती है, एज वेल एज टू थिंग्स कम्स बिटवीन दैट, टू थिंग्स कम टुगेदर, नॉट अ बिटवीन, लाइक you are in board, it means that you are adult
एंड यू हैव एन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव एन बोर्ड एग्जाम। तो इस एज में हमारे पास बहुत सारी चीजें एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है। लाइक 9th क्लास तक थे, ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम आ गए एंड बोर्ड एग्जाम को एक टैबू बना दिया हमने। दैट इज लाइक के बोर्ड एग्जाम है, टफ होंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, सबसे बड़ी बात पेपर बाहर से आता है। एंड तो ये सारी चीजें को हमने ओवरकम किया। सिमिलर मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, लाइक पेपर बाहर से आता। अभी तक तो मैम बता देती थी, 9th में जो मैम ने पढ़ाया होता था, मोस्ट ऑफ द थिंग्स अगर बताएं तो हमारी 9th क्लास में वही सारी चीजें आती हैं जो कि हमें क्लास में पढ़ाया जाता है। बट और सिमिलर 10th क्लास में भी वही होता है, बट 10th क्लास में क्या होता है, कॉम्पिटेंसी आ जाती है। तो क्वेश्चन जो हमारा एकदम सीधे आ रहा था, अब वो क्वेश्चन सीधे ना आके वो थोड़ा चेंज और ट्विस्ट हो जाता है, बस यही डिफरेंस होता है। तो आजकल ना हमारे क्लास 9th में भी ये सारी चीजें कर दी गई हैं कि हमें ना क्लास 9th से ही प्रिपरेशन, इवन क्लास 8 से ही प्रिपरेशन शुरू करवा दी जाती है कि आपको ना क्लास 8 से ही प्रिपरेशन शुरू है, बिकॉज आफ्टर 2 ईयर यू गेट अ 10th क्लास और आपको बोर्ड एग्जाम आने को मिलेंगे। तो आपको ना उसी टाइम से शुरू करवा दिया जाता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं, और उनका लेवल हाई करने की ट्राई किया जाता है कि बच्चों को वो 10th क्लास में ओवरकम ना हो। बट स्टिल 8th क्लास पढ़ लेते बच्चे, 9th क्लास पढ़ लेते हैं, फिर उनको फिर भी लगता है यार 10th क्लास है, अब तो ये बाहर से एग्जाम आने वाला है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो इस टाइम पे एक क्रिएट होता है प्रेशर, और उनके पास ना बहुत सारे प्रेशर होते हैं कि 95 लाना है, अच्छा करना है, हर चीज को समझना है, और एक डिसिप्लिन भी आ जाता है स्टूडेंट में कि चलो अब हमारे पास 10th क्लास है तो हमें इसको और अच्छे से करना पड़ेगा। तो इसमें सिमिलर थिंग्स मेरे साथ भी हो रही थी। अब क्या होता है, like a many student, I also had a confusion, pressure and many question in my mind about how to start preparation, ठीक है। So I also have pressure like how to start my preparation, but I realized on one of my teacher said that if you get a pressure, और अगर आप ऐसे में pressurized हो जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। So he said that one quote that I remember right now: don't come from fear. If you are feared your fear, और अगर आप किसी भी चीज से डर रहे हैं, it's come from planning, discipline and daily efforts. अगर if you want to success in your life, it's come from you start working hard. आजकल का जो टैबू बना है कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करो, बट जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे, you don't get the techniques to do smart work. So please, I request to all them, इवन स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, अगर आप हार्ड वर्क करेंगे जब ही आपको उसका जिस्ट मिलेगा, यू नो हाउ टू डू अप्लाई इन योर लाइफ, और स्मार्ट वर्क कैसे करें। आप एकदम से स्मार्ट वर्क के ऊपर जंप करेंगे, यू नेवर गेट सक्सेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट थिंकिंग इन first of all start hard working, not in a hard working like that. हार्ड वर्किंग को ही हम टर्न करते हैं स्मार्ट वर्क में, नॉट लाइक दैट कि हम हार्ड वर्क नहीं करते, हम तो स्मार्ट वर्क करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली एफर्ट्स लगाने हैं, रोज का काम रोज करना है। हमें ना प्रोक्रेस्टिनेशन वाली चीज नहीं करनी है, लाइक हमने आज नहीं करा, एक काम करते हो मंडे से पढ़ूंगा, नहीं ट्यूसडे से पढ़ूंगा, एक काम करता हूँ 1 तारीख से पढ़ूंगा। नॉट लाइक दैट, यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अगर आप चंक्स में पढ़ना शुरू करेंगे, चंक्स इन द सेंस पोर्शन कर करके पढ़ेंगे ना, तो आपकी स्टडी टिप्स जो होंगी, स्टडी जो होगी, बहुत ही वेल डिसिप्लिन होगी। और रोज का रोज काम करो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि मुझे पंक्चुअलिटी एज अ माय टीचर now in MSc also appreciate my punctuality, regularity and consistency. So these 3 keywords that you make success, you just follow that. discipline रहना चाहिए, पंक्चुअल रहना चाहिए, और कंसिस्टेंसी तो होनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट कंसिस्टेंट, और ऑनेस्ट कंसिस्टेंट रहो, नॉट लाइक दैट कि स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, मैं तो रोज कॉलेज जाती हूँ बट मैम वहां पे कुछ समझा रही है तो हमारा वहां पे बॉडी प्रेजेंट है बट हमारा माइंड जो है वो एब्सेंट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट विथ योर बॉडी, विथ योर माइंड। एंड इफ यू ऐसा होता है, देखो एक आध दिन तो हमें लगता है कि आज मेरा मन नहीं है, यू शुड लीव दैट डे, यू शुड लीव इट एंड नेक्स्ट डे से अपना स्टार्ट कर लो, छोड़ दो। जरूरी नहीं है आपको रोज पढ़ना, जिस दिन मन नहीं है उस दिन आप छोड़ दो, बट ऐसा रेगुलर बेसिस पे मत करने लगना कि एक दिन पढ़ा और बाकी दिन छोड़ दिया, नॉट एट ऑल। तो सिमिलर जर्नी मेरी भी थी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने बारे में इतना सारा चीजें क्यों बता रही हूँ, एक मोटिवेशनल
स्पीकर टाइप की हूँ, आपको मोटिवेशन दे रही हूँ, सो नॉट फॉर दैट। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विथ 3 थिंग, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड आप रेगुलर एफर्ट्स लगाइए, पंचुअल रहिए और कंसिस्टेंसी के साथ रेगुलर पढ़िए उसको, और अपने टॉपिक्स जो है ना उनको सिर्फ आप पढ़िए मत, लाइक सिस्टमेटिक वे में पढ़ लिया है कि मैंने इस चैप्टर को 2 बार रिवाइज करे, नॉट इट, यू जस्ट गो इन क्रिटिकल थिंकिंग। आजकल क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में जानना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और ऐसे ही बहुत सारी जर्नी एंड द मोटिवेशन और द कॉन्सेप्ट of the whole video, whole lecture and last conclusion में मैं इसको एंड अप करना चाहूंगी, दैट इज कि अब मैं एक नया वीडियो लेक्चर, एक प्लेलिस्ट लाऊंगी जिसमें पूरे 10th क्लास के लेक्चर्स होंगे, क्लास 10 में मैथ्स, इवन आई स्टार्ट विथ साइंस ऑल्सो, बट मैथ्स मेरा मोटिव है कि मैथ्स को मैं बहुत ही ईजी वे में पढ़ाऊं बच्चों को। और अगर और ऐसी वीडियो पार्ट 2 भी आएगा, उसमें मैं पूरी जर्नी शेयर करूंगी, एंड ऐसे 3-4 पार्ट आएंगे जिसमें हम सिलेबस एंड एवरीथिंग हम उसमें डिस्कस कर लेंगे, और कैसे हमें इजी लेके हमें सारी चीजें कंप्लीट करनी है, उस सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो आई होप यू एंजॉय माय जर्नी, और बहुत सारी चीजें आज आपको सीखने को मिली होंगी। एंड 3 कीवर्ड्स दैट आई एट लास्ट एंड नॉट लीस्ट I'm just discuss it's disciplined, punctual and consistent. If you follow these 3 words, and you can say that the mantras of your success, so you will definitely succeed in your life. So at last I'm just saying, because अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम डायरेक्ट हमारे लेक्चर वीडियोस पे बात करेंगे कि कैसे कैसे लेक्चर बनेंगे, कैसे हम उसको स्टार्ट करेंगे, क्या क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा और आपको क्या क्या एफर्ट्स लगाने होंगे। सो हम उसके बारे में बात करेंगे। सो आई होप यू एंजॉय, एवरीवन इज एंजॉय, और जिसके पेरेंट्स, अगर कोई पेरेंट्स हैं सुन रहे हैं या फिर कोई यंगर ब्रदर सिस्टर सुन रहे हैं, सो प्लीज डेफिनेटली शेयर विथ योर ब्रदर सिस्टर, एंड क्योंकि ये जिनके लिए है तो ये इफेक्टिव उन्हीं के लिए होगा, और इसको एंजॉय करिए आप, एंड बहुत सारे कॉमेंट करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, स्टे हैप्पी, stay healthy, and we will meet in another video session. Okay, bye, take care.